सनम तेरी कसम 2 हैज बीन अनाउंस्ड। रीइंकार्नेशन कराओ, कुछ भी करो, लेकिन मावरा को उसमें होना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ करना तो ऑफ कोर्स लाइक आई वुड आल्सो लव टू। Things improve in such a manner that at least there should be more collaborations maybe. आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हमें बहुत प्यार मिलता है इंडियन ऑडियंस से भी। हर्ष से मेरी बात हुई और कुछ माजरत भी उनकी तरफ से थी। You guys shared a fantastic chemistry. It's not just him. I think everyone went into a cocoon. It was very, very heartbreaking. Like, you know, it's a soul-shattering experience. Have you spoken to anyone from the team? Many, many years ago, मुझे लग रहा था कि बस जो when Saru died, I died with it, and like the actor also died, and I can't work anymore. 10 महीने आप इंडिया में रही हैं, आपको कैसी मोहब्बत मिली? बहुत प्यार मिला। मावरा जी, आपने एक थोड़ी सी गलती कर दी आपने, क्या? इसलिए साथ नहीं रहते हैं बिकॉज वो भूल जाते हैं। मैं तो इसमें पूरी तरह यकीन रखती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, it's very important to forgive. विद्या बालन ने कहा है कि मावरा आप कमाल हो। My husband's name is Amir Kamal Gilani. आप कमाल हो, so that also, you know, like adds to my surname now. You had a 3-film deal after सनम तेरी कसम in India? I decided that I will never speak about it. मावरा जी, कि इस शिद्दत से रुलाने का जो राज है वो प्लीज आज शेयर करें आप। हमारी जो हीरोइन है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा वो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया है। मोहब्बत की कोई इंतहा होती ही नहीं है, इट्स बेइंतहा। If Saru had social media, what would be her Instagram bio would be like? One word to describe the chemistry between Saru and Inder. One word. If Sanam Teri Khasam had to be summed up in a romantic song, if you could dedicate a love song to Amir Gilani, Oh, to Amir. अमीर को मैं क्या if Saru wrote a love letter to Inder, if your life was a Pakistani drama, जिंदगी गुलजार है। your dream director to work with, In which country? तेरा चेहरा या खींच मेरी फोटो, शाहरुख खान या रणबीर कपूर बेटर एक्टर? हर्षवर्धन राणे से अगर आप एक सवाल पूछना चाहें। Assalamu alaikum, I'm Mavra Hussain and you're watching me on Connect Cine with Paridun. मावरा, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसी हैं आप? Thank you, बिल्कुल ठीक हूँ। First of all, congratulations for your wedding. I think it's a very festive moment for you. Like right now, first thoughts शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, alhamdulillah, like I think it's the best time right now. Just a little caught up. अभी तक haven't had the opportunity to rest. Trying to find time and manage time for everything. Alright. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी शादी की पिक्चर्स जी। इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जी। हजारों करोड़ों लाइक्स उसके ऊपर आ रहे हैं इस वक्त, एंड यू आर बीइंग कॉल्ड द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। कभी आपने Allah, तसव्वुर किया था कि how ये sweet. कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं? No, I'll be honest. I have always received, like, ever since the release of Sanam Teri Kasam, it didn't matter how the film did back then. मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, जो कि वो एक चीज़ है जो consistent रही है। And now, माशाल्लाह, with the film doing well, वही same प्यार जो मैं personally तो experience कर रही थी, वो exponentially बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब सारी दुनिया को नजर आ रहा है, which is beautiful. The film is writing history right now. किसी भी फिल्म का री-रिलीज में इस तरीके का रिस्पॉन्स आज तक नहीं हुआ है. It is going to be the biggest success story ever. How do you just fathom something like this in the first place? You know, to be honest, if the film waited 9 years to do these numbers, I think it's my husband bringing in the luck for sure. Because the only thing that has changed is that. क्योंकि फिल्म हमेशा थी और सब कुछ हमेशा से था. But I truly feel it's the marriage luck and because it's literally the same date. And it is, of course, मेरे लिए भी बहुत ही unbelievable है and जो प्यार मिल रहा है, it's insane. मैं कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर मैं मिस कर रही हूँ। लेकिन जितना देख पा रही हूँ आई कैन लाइक इट्स रियली ओवरवेलमिंग। आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल। हर्ष से मेरी बात हुई और उनसे मैंने कहा कि आप विश करना चाहेंगे मावरा को, और उन्होंने कहा कि नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा, और थोड़ा सा माजरत भी उन्होंने करी कि जब फिल्म रिलीज़ हुई और उतना नहीं चली तो वो थोड़ा सा शेल में चले गए अपने। जैसे क्रिकेट का एक वो खिलाड़ी होता है, ये मैच अगर नहीं जीत पाए तो क्वाइट हो जाता है, तो कुछ माजरत भी उनकी तरफ से थी। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप हर्ष के इस कमेंट से? बिकॉज यू नो देयर सो मेनी पीपल हु थिंक दैट
You guys shared a fantastic chemistry. आई थिंक माज़रत की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आई फ़ील पूरी यूनिट ने फ्रॉम द डायरेक्टर्स टू हर्ष टू एवरीवन ऑन द सेट माय कॉस्ट्यूम टीम माय डायरेक्शन की पूरी टीम एवरीबॉडी लाइक आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट but like from the DP down to the spot boy, everyone worked so hard. And I think when the film didn't do well, it's not just him. I think everyone went into a cocoon. And personally, for me, also, it was very, very heartbreaking. Like, ऐसे soul shattering experience था क्योंकि, you work so hard and I was there in India for, I think, about 10 months, day in, day out. And I was just 22. I had never lived away from my family. Because of the visa situation, nobody could travel with me. And पहली बार ज़िंदगी में मैं अकेले थी और बहुत जितनी मेहनत पॉसिबल थी, उतनी मेहनत की थी। एंड जब एंड रिज़ल्ट नहीं मेहनत की थकन उतर जाती है जब चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन जब वो सक्सेस नहीं मिली तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही आई फ़ील लाइक मेरी तो मुझे लगता है जैसे पूरी सोल शैटर हो गई थी। एंड इवन आई फ़ील दैट आई वेंट इंटू अ कोकोन लाइक इट टूक मी एट लीस्ट अ ईयर टू काइंड ऑफ रिज़रेक्ट। मुझे ऐसे लगा जैसे आई डाइड एंड रिज़रेक्टेड, लाइक especially performing a character like Saroo's and you die at the end of the movie. So वो सब एक्सपीरियंस किया और फिर इतनी मेहनत की और पूरी यूनिट ने इतनी मेहनत की और जब सब लोगों की मेहनत रंग नहीं लाई तो आई थिंक वो सबके लिए बेहद हार्ट ब्रेकिंग था एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन दैट we weren't all able to keep in touch. Plus I wasn't even geographically present, so I don't blame anyone. I think वो सबके लिए equally heartbreaking था process. So have you spoken to anyone from the team? Have you spoken to Harsh? Have you spoken to the directors? I think many, many years ago. No, no, no. I think right after the movie. But even at that time, we weren't really able to console each other. क्योंकि ऐसे लगता है कि एक मूवी है और कोई बात नहीं, हिट और फ्लॉप, इट्स ऑल राइट, which it is. मुझे इतने साल बाद ये बात समझ आ गई है कि हर चीज़ की अपनी डेस्टिनी होती है. Mashallah, like the movie is now doing great numbers, but even when it didn't, even when the re-release hadn't happened, I had made my peace with it, and I'm sure सब लोगों ने ऐसा ही किया होगा एंड देन यू मूव पास्ट अ हार्ट ब्रेक बट उस टाइम पे आई थिंक बहुत मुश्किल था हमारे लिए एक दूसरे को कंसोल करना तो कोशिश करते भी थे तो कुछ ऐसा होता नहीं था कहने के लिए प्लस किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से हम लोग सब एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे लाइक फिजिकली भी मिल नहीं पाएंगे और तो वो सब आई थिंक वो प्रोसेस का पार्ट था एंड इट्स ओके आई फील उस टाइम पर वी ऑल ट्राई टू कीप इन टच. But then after a point we couldn't because now it's like been 9 years. So I think शुरू के 1-2 साल में we were kind of in touch. But उसके बाद I think सब लोगों के लिए और तब भी we just tried to be there for each other, but none of us was um, okay enough to console the other. So I think फिर सब ने अपनी अपनी जर्नी और अपना अपना हार्ट ब्रेक खुद डील किया है और सबने खुद उससे रिकवर किया है. Like I can at least speak for myself कि मेरे लिए had my family not been there for me or like my siblings and my friends, mera core group really saw me go through that heartbreak and helped me kind of come out of it. And then alhamdulillah, like I had so many work opportunities, so many beautiful work opportunities here in Pakistan कि मुझे लग रहा था कि like the actor in me had died. And I tried to convince my producers that I cannot act anymore. But I think I'm so grateful to them that they kind of convinced me back into it and I was able to deliver a Sami or an Angan because मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. मुझे लग रहा था कि बस जो when Saru died, I died with it and like the actor also died and I can't work anymore. But I think I was proven wrong. And over the years, then, the work here kind of helped me come out of it. Right, I still remember in Dubai you told me that Angan is based in 1942 when it was undivided जी, subcontinent was undivided. Okay, जी। 10 महीने आप इंडिया में रही हैं, आपको कैसी मोहब्बत मिली? बहुत प्यार मिला, बहुत। मेरी यूनिट बहुत अच्छी थी। बहुत स्पेशल मेंशन मैं करना चाहती हूँ फॉर कलीम सर हू वाज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द मूवी एंड दीपक सर एंड हिज वाइफ कृष्णा जी एंड माय स्टाइलिंग टीम में से इरुषि हैं। सो ये 4 लोग आई फील दे वर लाइक इन 4 लोगों का होना बहुत ज़रूरी था। उनकी वजह से आई फेल्ट एट होम।
I was able to do what I did. Deepak sir and Krishna ji really looked after me. So I feel like उनको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है. Like I said, I was really young. तो वो उन लोगों ने बिल्कुल जैसे अपने फैमिली की तरह मुझे वहाँ पे रखा है. And Kaleem sir and his wife, they were all like so kind and so loving that I think उसकी वजह से मेरी थोड़ी होम सिकनेस कम हो जाती थी. मावरा जी, आपने एक थोड़ी-सी गलती कर दी आपने। क्या? आपने स्टाइलिंग का आपने ज़िक्र किया और आपने मुस्तकीम भाई का ज़िक्र नहीं किया। नहीं, एक्चुअली ईशी जो है ना, आई एम जोकिंग। आई नो विजय व्हाट यू मीन. विजय नो, राज। नो, नो. आई थिंक ही आप इज़ सोचिए 9 साल हो गए, कैरेक्टर्स के नाम भी भूल गई. विजय राज है। आई थिंक ही एब्सोल्युटली मैं तो विजय बिल्कुल राज सर. ताज़ा-ताज़ा जी, देखी हुई है जी, ना जी. पिक्चर में, तो मुझे तो एक-एक चीज़ याद है। जी, जी, तो मुझे आई थिंक विजय बहुत राज इज़ अरसा हो गया लास्ट टाइम. No, no, दैट Vijay sir being on the film was amazing, was amazing. yeah, that Wikipedia and all that, I think it was absolutely brilliant in जी, more ways than one. Okay, now ये जो आपका डायलॉग है ये वाला कि दैट लोग इसलिए साथ रहते हैं बिकॉज़ वो इसलिए साथ नहीं रहते हैं बिकॉज़ वो भूल जाते हैं, बट इसलिए साथ रहते हैं बिकॉज़ वो माफ़ कर देते हैं. This is going viral. Uh, I think I'm sure that you have seen it as well on Instagram. It is being flooded right now. मैं इत्तेफाक से भी मैं देख रहा था एक 2023 का मैंने किसी का ट्वीट देखा कि अच्छा. that this is the perfect life lesson. The fact is that this movie has had her cult following over the years. जिसने भी देखी उसको वो उसके दीवाने हो गया. Like I've had people posting that हमने 50 बार देखी है पिक्चर. So which is wonderful Yeah. as well. But when you look at this dialogue, I think this dialogue has so much meaning now. That लोग इसलिए साथ रहते जी. हैं इसलिए नहीं because वो भूल जाते हैं, but इसलिए because वो माफ कर देते हैं. I think माफ कर that is देते हैं. has so much of subliminal and meaning to it, subtext to it. Yeah, I think it's a very important life lesson. Of course, like मैं तो इसमें पूरी तरह यकीन रखती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, it's very important to forgive and let go and move on. So yeah, I think ये इसीलिए लोगों के साथ इतना ज़्यादा रेज़ोनेट भी कर रहा है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि अब यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और यहाँ से आगे बढ़ना अब नामुमकिन है. But then, you kind of gather courage and then you kind of find it in your heart somewhere to forgive and move on. And I think ये बात या शायद ये फ़िल्म ने लोगों को इस बात की याद दिलाई है. And yes, you're right. Not recently, but like इस पिछले कुछ दिनों में मैंने इंस्टाग्राम पे barely कुछ देखा है क्योंकि मुझे वक़्त नहीं मिला. Of course. लेकिन उसके पहले before this movie became a sensation that it has become now, माशाल्लाह, डेली बेसिस पर भी मुझे इस तरह के मैसेजेस आते थे कि वी वर एबल टू फिगर समथिंग आउट इन आवर लव लाइफ और इन आवर जिंदगी में फैमिली के साथ बिकॉज़ वी टुक अ लेसन फ्रॉम दिस फिल्म व्हिच इज ब्यूटीफुल. Absolutely. And म्यूजिक की अगर बात करें, स्पॉटिफाई पे जी. टाइटल ट्रैक जो है वो नंबर 3 पे पहुंच चुका है, एंड आई थिंक ऑल द अदर सॉन्ग्स आर डूइंग सो वेल. आई एम लिसनिंग टू दिस एल्बम कॉन्स्टेंटली एंड आई थिंक इट्स सच एन अमेजिंग एल्बम. चाहे वो लिरिक्स की बात हो, चाहे यू म्यूजिक आर प्रोडक्शन हाउ की नाइस. बात हो, चाहे आप ये इमेजिन करिए कि अरिजीत सिंह लाइक like a very very fresh Arijit Singh starting off in a way, early days whatsoever, and amazing songs. Palak Muchal, I think Palak is just done a cover, like a version recently, and amazing songs. एक से एक गाने हैं. I think हिमेश रेशमिया at the top of his game. कमाल की म्यूजिक है. जी. Very emotional. जी। आई थिंक ये हिमेश सर की ख़ासियत है, उन्होंने जब भी म्यूज़िक बनाया है वो हमेशा हमेशा चला है और उनको ये लाइक इट्स हिज़ गिफ्ट. वो जब भी कुछ भी बनाते हैं वो मतलब बिफोर आई इवन डिड सनम तेरी कसम, ऑफ कोर्स आई न्यू ऑफ हिम, ऑफ हिज़ म्यूज़िक. एंड देन हिमेश सर के साथ पेयर हो गए अरिजीत सर, हू वाज़ ऑल्सो even back then a huge name. Like up to khair, it's like he's one of the biggest name of South Asia and in the world. But Arijit sir ho या अंकित sir हो या Ankit, नीति yeah, Ankit मैम हो, Tiwari, of ये course. सब नाम बहुत ही मतलब बहुत ही म्यूजिक के बड़े नाम हैं. एंड आई थिंक जब मुझे पता चला था कि हिमेश सर इज डूइंग द म्यूजिक, आई न्यू द म्यूजिक्स गोना डू वेल. And then like I said कि जब ये सारे singers के नाम साथ जुड़ गए and then there were new singers as well. There was Akasa, there was Darshan. I think सब लोगों की एक तो किस्मत और फिर talent साथ में made the music what it became. Right. So Radhika in an interview recently said कि जो खींच मेरी फोटो में मछली का जो सीक्वेंस है,
एंड अपैरेंटली आप उल्टियाँ कर रही थी, लेकिन शी वाज़ एब्सोल्युटली gung-ho अबाउट योर कमिटमेंट एंड योर प्रोफेशनलिज्म, कि वो लड़की ने किसी को बताया नहीं एंड वो उसने किया उसने। शी डिड नॉट जस्ट बैक आउट। वो ये इनफैक्ट Harsh told me that Mavra is fierce, that she gets what she wants. Um, कैसे देखते हैं आप when you hear these stories and these people talking about you like this? I think it's very, very kind of them. They're all very hardworking themselves. Um, when I came for the movie, I was a couple of years old in my industry as well. So I think the training came from, where I started working. And that training had taught me already that once you're on set, uh, what you go through is your own problem. So the reason why मुझे तो ये कहानी सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं थी till I saw a clip. My brother sent it to me this morning, and he said, "Really, did this happen?" And I was like, "Yeah," and I had completely forgotten about it क्योंकि इतने सारे साल हो गए. Plus, I don't like to share the hardships on set with anyone. I feel like, Alhamdulillah, it's such a privileged job to be an actor and to have this opportunity to work सेट के ऊपर 100-200 लोग होते हैं जो सिर्फ़ आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं ताकि आप शाइन कर सको। तो मुझे यही हमेशा से यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने ये सीखा था और मोर सो ऑन सनम तेरी कसम सेट कि जब इतने सब लोग आपके लिए उफ़ किए बगैर कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे वो लाइट मैन हो जो पूरे दिन हमारे लिए लाइट पकड़ के खड़े रहते हैं या बूम पे जो दादा होते हैं जो पूरा दिन बूम पकड़ के खड़े रहते हैं, वो कभी उफ़ नहीं करते। तो हमें तो सब वी आर सो लुक्ड आफ्टर बाय आवर मेकअप टीम, स्टाइलिंग टीम, डायरेक्टर्स, literally producers, everybody is really looking after the main actors particularly. तो मुझे लगा कि बताना ही नहीं चाहिए अगर कुछ तबीयत खराब हो भी रही है तो just deal with it myself and then just go work hard. And I'm very like I feel like one thing that I'm very proud of that I have in me is one's punctuality and the other is like a lot of hard work. Like I'm capable of working very hard. Alhamdulillah, like I think it's also a gift कि आप आपके अंदर वो सलाहियत हो कि आप उतनी मेहनत कर सकें. So I was saying कि मुझे हमेशा ये होता है कि once I'm on set, जितनी मेरे अंदर काबिलियत या सलाहियत है कुछ भी डिलीवर करने की, मैं उसका 200% डिलीवर करूँ. सो आई थिंक ये अच्छा लगा मुझे सुनकर कि उन्होंने इसके बारे में बात की और स्वीट बात है बहुत क्योंकि वो लोग खुद भी बहुत मेहनती हैं. बट आई थिंक मेहनत हमेशा रंग लाती है एंड सनम तेरी कसम इज़ अ टेस्टामेंट टू दैट. No, absolutely. I think 250 लड़कियां apparently audition किया गया था and you were finally chosen. And then what Harsh was telling me कि the fact that just make the arrangements to get you to India and all those things happen. And Harsh also said one thing very interesting thing as well कि किसी नॉर्थ इंडियन लड़की के लिए साउथ इंडियन लड़की का किरदार निभाना आसान नहीं है कल्चरल रीजंस की वजह से. And she's coming from certain cultural background with where she's not privy to any of these things. And she pulled it off so beautifully. I think वो जो विभूति का जो सीन है आखिर में और with the जी. entire parents and everything was absolutely wonderful. Um, as an actor एक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को completely इन्वेस्ट कर पाना ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सर ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है बट लाइक आई सेड ये भी ना मैजिक की तरह है लाइक इट्स अ गिफ्ट. ये बल्कि गिफ्ट से भी ज़्यादा मैजिक ही है क्योंकि या ये हो जाता है या ये नहीं होता है. एक्टर सिर्फ मेहनत कर सकता है विच आई ट्राई टू पुट इन माई वर्क. बट आई थिंक जो कल्चरल चीज़ें हैं उनसे मुझे एजुकेट किया था राधिका मैम और विनय सर ने क्योंकि वो लोग इस स्क्रिप्ट से बहुत क्लोज थे. उन्होंने लिखा है, उनको सब बैकग्राउंड पता था. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राधिका मैम की बैकग्राउंड इज़ सेम एज़ सरू. सो वो बहुत सी चीज़ें मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ से बता पाती थी जो मुझे खुद ऑफ़ कोर्स पता नहीं था. सो मैं तो बिल्कुल ऐसे एक स्पंज की तरह थी वहाँ पर. आई जस्ट वांटेड टू डू अ गुड जॉब. तो वो मुझे जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती थी आई वाज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली अब्ज़ॉर्बिंग इट. एंड आई थिंक उसी की वजह से शायद उन लोगों ने जो इतनी मेरे साथ मेहनत की, इतनी मेरे साथ वर्कशॉप्स की और सब चीज़ें बताई डिटेल में सरू के बारे में. I think वो slowly like the character becomes a part of you, which is also very, very gratifying, but at the same time, it's very painful when you have to leave the character then, when you're not living like Saru anymore. So then it becomes very painful and heartbreaking. But I think वो पूरी मेहनत जो है वो एक collective, it was more teamwork. मेरा काम था to put in the hours and be very, very attentive and absorb as much as I can
from all the teachers I had, whether it was Radhika ma'am and Vinay sir, or Papu sir and Malu ma'am, who taught me डांस फ्रॉम लाइक स्क्रैच. मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता था. मुझे बिल्कुल जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खींच मेरी फोटो करना है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज हाउ, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई हैव नो आइडिया हाउ टू शूट अ सॉन्ग. मेरे लाइफ का पहला सॉन्ग था खींच मेरी फोटो. सो आई थिंक पप्पू सर एंड मालू मैम ऑल्सो. सो आई वॉज जस्ट देयर वेरी वेरी फोकस्ड ट्राइंग टू अब्जॉर्ब एवरीथिंग. मुझे पता था मैं घर से दूर हूँ, अपने घर को रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स द टीम दैट इज इन्वेस्टिंग इन मी, दीपक सर एंड एवरीवन एल्स, जो लोग मुझ में फेथ रख के मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई हैव टू कम थ्रू. सो मुझे बस ये पता था कि लाइक आईज ऑन द प्राइज, वर्क वेरी हार्ड, दैट्स ऑल आई न्यू. बाकी जो सब कुछ हुआ है ना सर, वो मैंने नहीं किया, वो लिटरली यूनिवर्स ने किया है. दैट्स एब्सोल्यूट मैजिक. ओके, नाउ सनम तेरी कसम 2 हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड बहुत से कमेंट्स तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं कि दैट रीइंकार्नेशन कराओ, कुछ भी करो लेकिन मावरा को उसमें होना चाहिए। कैसे कैसे देखते हैं आप? आई मीन आई वुड बस मैं ये चाहूंगी कि चाहे मैं करूं सनम तेरी कसम 2 या कोई और करे, मुझे इतना पता है कि माय producer really deserves this success that the film is now getting. The numbers that are pouring in, I think, more than any of us, like Deepak sir, deserves it. And Allah kare कि when he makes the second part, वो इससे भी बहुत ज़्यादा successful हो, with or without me. Like मेरी हमेशा best wishes रहेंगी. अगर possible हुआ करना तो of course, like I would also love to. लेकिन अगर ना possible हुआ तो there is no लाइक दिल में कोई बात नहीं है. जितना सनम तेरी कसम को प्यार अब 9 साल बाद मिल रहा है, इसके बाद तो शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है. ये इट्स मतलब दिस इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल, ऐसा नहीं होता है. जैसे आपने मुझे मैसेज किया, ऐसे मुझे इंडिया से जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, दे आर मैसेजिंग मी एंड टेलिंग मी लाइक दिस इज़ मिराकुलस, लाइक दिस डजंट हैपन. एंड मैं शादी चल रही थी और मुझे मैसेज आ रहा था, योर मूवी इज़ मेकिंग हिस्ट्री, एंड आई एम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी. सो आई थिंक जितना मिल गया है मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ. जितना प्यार मिल गया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ. और अगर इससे ज़्यादा किस्मत में होगा, क्योंकि ये सब भी किस्मत से ही हो रहा है. सो अगर किस्मत में होगा, अगर लिखा हुआ होगा तो हो जाएगा. और अगर मेरे लिए ना भी हो, मैं अपनी टीम के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा. दैट्स वंडरफुल। विद्या बालन ने कहा है कि मावरा आप कमाल हो। It is so sweet. My brother messaged me this morning कि विद्या मैम ने ऐसा लिखा है मेरे बारे में. Actually yesterday morning उन्होंने मुझे मैसेज किया, and my husband's name is Amir Kamal Gilani. So ओके, इंटरेस्टिंग। my brother messaged saying, how does she know his name is Amir Kamal Gilani? So we were all just, joking about it. Ki now now they're saying कि आप Kamal हो. So that also, like adds to my surname now. So it was very sweet. Also like otherwise really sweet of her to appreciate my work. Because I think जिस खूबसूरती से वो काम करती हैं और जितने बिल्कुल effortlessly she, transforms from one character to the other, whether it's what's the character Manjulika, or हुँ, it's her बुलबुलें। character in Dirty Picture, or it's in Kahani. ऐसे लगता ही नहीं है सेम इंसान है. And back in like Parinita, she was so beautiful, so effortless. तो I think उनसे उन्होंने मेरी तारीफ की है, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है. राइट, एंड अपैरेंटली यू हैड अ 3 फिल्म डील आफ्टर सनम तेरी कसम इन इंडिया? It's so strange that you asked me this today. Because I decided when Sanam Teri Kasam didn't work and all the films that I was working on, I had to step out of them because of various reasons. I decided that I will never speak about it. क्योंकि जब आप कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं कर पाते, तो the projects they belong to the people who are actually in them. And I mean, you brought it up, but like, I'm not going to um, speak any further about it. ओके, मुझे आज भी याद है कि जब आप 9 साल पहले जब मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ था तो आपके रोने के बारे में बड़ा ज़िक्र हुआ एंड उसमें एक एनालॉजी भी ड्रॉ करी थी शाहरुख खान जैसे उनका शाहरुख खान का एक हाथ का मूवमेंट होता है, उस तरीके से कहा जाता है कि मावरा इज़ शी इज़ हर हर अगर मावरा रो दे किसी पिक्चर में या ड्रामे में तो कामयाब है वो। सो व्हेन आई जी. व्हेन आई सॉ द फिल्म एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ इतनी इज़्ज़त बढ़ गई आपके लिए। बिकॉज़ वो किरदार आपने इतना रियल उसमें वो है कि दैट आई वाज़ लिटरली क्राइंग सीरियसली।
मतलब मैं तो आँसुओं से तो रो रहा था। एंड सी मैं आपको बताऊँ, मैंने ये हद से मैंने कहा कि दैट मुझे इतना कंटेंट कंज़्यूम करना होता है, आई गेट बोर्ड वेरी ईज़िली। अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होता है तो मतलब आई मूव ऑन। यहाँ पर मतलब ये है कि दैट इट वाज़ इट वाज़ समथिंग एल्स। ये जो एक राज़ है मावरा जी, कि इस शिद्दत से रुलाने का जो राज़ है वो प्लीज़ आज शेयर करें आप। नहीं, कोई ऐसा राज़ नहीं है। मुझे याद है जब राधिका मैम और विनय सर ने मुझे फर्स्ट कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करते ही कहा था कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सिर्फ़ अब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कोई ऑडिशन या कुछ इस तरह नहीं करना? उन्होंने कहा हमारा एक ही क्राइटेरिया था ऑडिशन का कि हमारी जो हीरोइन है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए। हुँ। तो उन्होंने कहा वो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया है, अब हमें तो आप ही चाहिए हो। आप हमें बता दो कि लाइक आर यू अप फॉर द मूवी और यू वांना रीड द स्क्रिप्ट, व्हिच आई डिड। लेकिन मुझे लगता है कि रोने का जो आई डोंट नो मुझे हमेशा बहुत तारीफ़ मिली है इस चीज़ के लिए, लेकिन आई फ़ील कि मैं उसको इस तरह सोचती नहीं हूँ कि वो मैंने बहुत अच्छा रोना है। व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ जो भी सीन है, जो भी स्क्रिप्ट मुझे दिया गया है, उसको किसी भी तरह मेहनत से दिल में उतार लूँ। क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाउ दे से कि अम, हाउ दे से कि दिल से जो बात निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। क्या बात! सो आई थिंक कि जब आपका क्योंकि सब इंसान है ना जो आपको देख रहे हैं, एंड आई थिंक अगर मेरे दिल को कुछ सच्चाई फील होगी तो वो सच्चाई ऑडियंस को भी ऑडियंस तक भी पहुंचेगी। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड आई ऑलवेज जस्ट प्रे बिफोर आई एम गोइंग ऑन सेट एवरी मॉर्निंग। आई रिमेंबर सनम तेरी कसम पे हमारा रोज 4 AM पिकअप टाइम होता था। सो जस्ट बिफोर दैट आई वुड से माय नमाज एंड प्रे, एंड मैं बहुत अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हेल्प मी गेट इट राइट। क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना कि वो ईदर यू गेट इट राइट और यू डोंट, यू कैन ओनली ट्राई। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि सच्चाई हो, जो तकलीफ़ उस कैरेक्टर को हो रही है वो तकलीफ़ शुड पास थ्रू मी सो इट कैन रीच द ऑडियंस। लेकिन सनम तेरी कसम पे मैंने ये सीखा कि खुद को इतनी तकलीफ़ से भी नहीं गुज़ारना होता। यू नो उस वक़्त मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था। आई डिडन्ट नो कि जब एक दफ़ा ये रास्ता खुल जाता है बिटवीन यू एंड योर कैरेक्टर, then how do you then switch it off? Like how do you put the ढक्कन back? Like ये नहीं मुझे पता था कि ये कैसे करते हैं। So I think because of that, maybe I might have suffered for a very long time. लेकिन today I'm very very grateful कि वो रास्ता बन गया था between me and Saru, with my director's help and with the workshops and with the circumstances I was put in, कि वो शायद एक रास्ता बन गया था जिसकी वजह से एक सच्चाई से मैं डिलीवर कर पाई। और अब जब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं तो ऑल आई फ़ील इज़ रियली रियली ग्रेटफुल। आई एम श्योर मैं फ़िल्म देखूँगी तो मुझे लगेगा उफ़! ये क्या किया है, बेहतर करना चाहिए था। लेकिन मैं क्योंकि मुझे शायद 8 साल हो गए हैं फ़िल्म देखे हुए, तो आई एम एब्सोल्यूटली ग्रेटफुल। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं मतलब सर आँखों पर। इनफैक्ट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था समीना पीरज़ादा साहिबा के साथ में, और उन्होंने आपसे सवाल जी। पूछा कि दैट आपके आपके करियर में सबसे सबसे मुश्किल कौन-सा सीक्वेंस रहा है, तो आपने ज़िक्र किया आखिर का, सनम तेरी कसम हाँ में, जी। एंड apparently there were 3 different scenes that had been shot for the death sequence. 2 different ways we were, planning it and we were doing a workshop around it. जी। ऑलराइट, तो रैपिड फायर विद माबरा। फिर से पूछोगे तो मैं हाँ कह दूँगी। फर्स्ट थॉट व्हेन यू हर्ड दिस डायलॉग? हाय! मुश्किल सवाल है ये। जैसे आपने भी ज़िक्र किया ना कि जो फाइनल सीक्वेंस है, आई आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस डायलॉग कम्स जहाँ पे सनम तेरी कसम सॉन्ग आता है, जहाँ पे वो सब ट्रेन के ऊपर रिमोट आता है और वो पूरा एक सेट लगा होता है। आई थिंक वहाँ पे इंदर का जो कैरेक्टर है, ही आस्क्ड मी टू मैरी हिम, and I think it was a very painful dialogue for me to deliver. And I'm sure like Radhika ma'am also cried a lot when she wrote it. Kyunki it's a request of a dying girl. Okay, even though I also do love you and want to marry you, लेकिन अभी पहले ना कह रही हूँ, लेकिन अगर फिर से पूछोगे तो हाँ कह दूँगी, because she wants to marry him,
ही इज़ ऑल्सो द लव ऑफ हर लाइफ, बट क्योंकि वो दुनिया से जल्दी जाने वाली है, तो शी डज़न्ट वांट टू लाइक कमिट हिम टू हरसेल्फ and not make it difficult for him. So I think it's a very selfless, very beautiful line. And यही ख्याल आता है ज़हन में कि बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था. You know, to think that you have very few days left in the world and to completely just believe in it was, I think, very, very painful. उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। मोहब्बत की इंतहा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप एक सेंटेंस में? I think मोहब्बत की कोई इंतहा होती ही नहीं है. It's बेइंतहा. क्या बात! बेवजह। बेवजह, बेइंतहा. Okay, if सनम तेरी कसम is a mood, then please describe it in one word. I mean, if pure love can be a mood, then that is what Sanam Teri Kasam is. Pure, selfless love. Absolutely. Your favorite scene from the movie? Favorite scene from the movie? Oh, I'm sure I have many favorites, लेकिन फिल्म देखे हुए बहुत अरसा हो गया है. Favorite scene. मुरली सर के साथ मेरा एक सीन था. मुरली सर who played the Of inspector course, in the Murli Sharma. movie. मुरली शर्मा सर, उनके साथ एक तो मेरा उनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड था जब मैं सेट पर थी. वो भी बहुत ही काइंड इंसान है, बहुत प्यारे. बहुत रोज़ आके मेरे सर पे ऐसे हाथ रखते थे, बहुत प्यार देते थे. तो उनके साथ मेरा एक सीन था जहाँ मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप इंदर को अरेस्ट कर लेंगे, तो सॉरी आई लव यू कहने का चांस खत्म हो जाएगा. तो वो सीन बहुत स्वीट था और वो मुझे सीन इसलिए याद भी है क्योंकि मुरली सर वाज़ नॉट सपोज्ड टू क्राई इन दैट सीन, बट व्हेन आई क्राइड उनका दरवाज़ा पकड़ के तो वो रोने लगे. तो उन्होंने Yeah, कहा ये इस बच्ची को बोलो इतना मत रोए, मुझे रोना आ रहा है. yeah. I तो think वो I सीन बहुत मेरे लिए. नहीं, या आई थिंक इट वाज़ अ I वेरी think रियली even स्वीट even the सीन. way he responds to it, I think that's a very emotional moment. या One dialogue या from the movie that still gives you goosebumps. वन डायलॉग फ्रॉम द मूवी. एक तो वो जो आपने कहा शुरू में, वो जो क्लाइमैक्स पे आता है माफ़ करने वाला डायलॉग, Correct. कि लोग साथ-साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ़ कर देते हैं. अम, और एक और डायलॉग था, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल दूँ, अब तो सब बोलेंगे नहीं क्यों नहीं आता आपको अपना डायलॉग? लेकिन देयर इज़ दिस डायलॉग वेयर आई एम गिविंग इंदर द पर्स कार्ड ऑफ माय वेडिंग. वो वहाँ कुछ ऐसा कहती है कि इंदर तुम नहीं होगे या तुम नहीं आओगे तो कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं होगा मेरा अपना, कुछ ऐसा डायलॉग था. सो वो दैट डायलॉग रियली यू नो हिट मी बिकॉज़ मैं खुद भी बहुत अकेली थी पूरे क्रू में. इवन दो सब मेरे साथ थे, लेकिन होता है ना आप घर से दूर बिल्कुल अकेले होते हो, कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं होते. तो वो जब उसको कहती है ना तुम नहीं होगे तो कोई नहीं होगा मेरा अपना. So I think that dialogue even back then made me cry a lot कि कोई मेरा अपना यहाँ नहीं है, you know, on the shoot to see what I'm doing. That dialogue. Interesting. That's amazing. Okay. A song from the movie that's closest to your heart, if you have to pick one song. Has to be Kheech Meri Photo, without a doubt. I think for half a decade I was known as the Kheech Meri Photo girl. Correct. I remember meeting so many people in Bombay जब पोस्ट द मूवी ऑडिशंस चल रहे थे और डिफरेंट मूवीज़ के लिए मीटिंग्स होती थी. तो मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे जो भी एक्टर मिलते थे, जो भी डायरेक्टर मिलते थे, तो वो बोलते थे, "ओह हियर शी इज़ द खींच मेरी फोटो गर्ल." तो और इवन लाइक वर्ल्ड ओवर आई रिमेंबर गोइंग फॉर अ यूरो ट्रिप आफ्टर माय मूवी इन द सेम ईयर, एंड जर्मनी में और पेरिस में जहाँ पे लोग हमारी ज़बान भी नहीं बोलते हैं, they were saying खींच मेरी फोटो to me. So I That's think it has to be खींच मेरी फोटो. बहुत स्पेशल गाना है वो मेरे लिए. और लाइक आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू पप्पू सर एंड मालू मैम. उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है टू मेक मी डिलीवर खींच मेरी फोटो. that's So I wonderful. think it's also their credit. And like the kind of success, the song experience, just the song alone is, I mean, it's amazing. It's miraculous. That's wonderful. If Saru had social media, what would be her Instagram bio would be like? She would be, you know that Varun Dhawan dialogue, sweet innocent Swami type ka. So she would be sweet innocent Swami type ki, looking for an IIT IIM boy. Interesting. One word to describe the chemistry between Saru and Inder.
One word. Um, I think purity, Pure. pure, selfless love. Again, the same thing that describes the entire movie. Right. Your first reaction when you first heard Tera Chehra? ओह! मुझे जब तेरा चेहरा मैंने जैसे ही सुना, मुझे बताया गया कि ये अरिजीत सर गाएँगे। एंड आई थिंक दैट फॉर मी वाज़ अ बिग मोमेंट। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, आई वाज़ अ ह्यूज फैन, आई स्टिल एम। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि अरिजीत सर ये गाना गा रहे हैं और आई वाज़ ओवर द मून। If Sanam Teri Qasam had to be summed up in a romantic song besides its OST, which song would it be? हाँ, there's so many songs. Mm, you know that song from Bajrangi Bhaijaan? तू जो मिला तो हो गया सब क्या हासिल, बात क्या बात Okay. क्योंकि तू धड़कन में दिल। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। Okay, if you could dedicate a love song to Amir Gilani, what would that be? ओह! टू अमीर। अमीर को मैं क्या एक्चुअली जो सॉन्ग मैंने अभी बोला है वो भी मैं अमित को डेडिकेट करना चाहूँगी। बट आई थिंक आई कांट थिंक ऑफ अ सॉन्ग एट द टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। Okay. Uh, literally and figuratively. Okay, interesting. Which जी, class एब्सोल्युटली। which classic Bollywood love song perfectly describes Saru and Inder's love story? देयर लव स्टोरी। आई थिंक वही गाना कि या अगर तुम साथ हो आल्सो डिस्क्राइब्स देम रियली वेल। G. If Saru wrote a love letter to Inder, which song lyrics would perfectly fit in? इतने सारे गाने कैसे सोचूं मैं? अम, क्योंकि ये लोग बार-बार बिछड़ते हैं और बार-बार मिलते हैं, तो आई थिंक फिर ले आया दिल फ्रॉम बरसी वुड बी अ गुड लव लेटर। Okay, fantastic. Your favorite romantic song of all time? फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम्स? हाँ, दैट्स अ टफ वन। ऑफ ऑल टाइम्स तो बहुत ही बड़ा सवाल है। Mm, I think any of these songs that I've just mentioned, because these songs are some of my most favorite songs. That's why they're at the top of my head right now. Okay. A drama you wish had a sequel? आंगन, Hmm. क्योंकि आंगन की जो ending थी for Alia, it was a very open-ended conclusion. So I think if there would be आंगन 2, it would be very interesting. But ये उसके लिए हमें मुस्तफ़ा अफरीदी सर को कहना पड़ेगा कि लिख दें आंगन 2 हमें। Like I would love to do an आंगन 2. It's one of my most favorite scripts. Yeah, Mustafa Afridi Sahab, I think he has written some very very fine जी, जी। fine works. जी, जी, If your he's life was he's a wonderful. Pakistani drama, what would it be? What would be the title of it? You know, right now the title would be ज़िंदगी गुलज़ार है। Zindagi Gulzar hai. Okay. All right. That's all I feel right now. But Mashallah. I also hope that this ज़िंदगी गुलज़ार है is Sabat, like forever. Sabat. Okay. Sabat. I think Amir was there in Sabat. जी, जी, Sabat also means Hmm. never ending. Hmm. Okay. All right. A drama you watched recently and loved? A drama I watched recently. Oh, I haven't watched a drama recently. Recently, no. I actually, it's unfortunate, but I have been working so much, and with my personal commitments, like personal life, I don't think I've had the chance to watch a drama in a very long time. But I think the last drama that I absolutely loved and watched it thoroughly was Zindagi Gulzar Hai. Zindagi Gulzar. Okay. Your dream director to work with? In which country? Where? Wherever. I think in Pakistan, it would be Shehzad Kashmiri. I've already shot 4 projects with him. But he is such a wonderful mentor to me. He is so gifted कि मेरे लिए वो हमेशा मेरे ड्रीम डायरेक्टर रहेंगे। लाइक मैं चाहूँगी कि मैं till I die, I work with him. Even on my last project, I'm just with him, learning from him. He's so gifted and he's so absolutely wonderful कि उनके साथ में बहुत सीखा है मैंने। And I think in India, I would really want to work with Rajkumar Hirani sir. Rajkumar Hirani. Interestingly, Fawad is working with Vani, and there's several other actors who are also collaborating as well. जी, Sanam Saeed has done, जी, and several others as well. जी, जी। So, can we see Mawra Hussain as well? सर आई थिंक नसीब की बात होती है
नसीब होता है प्रोजेक्ट जो है ना, और हर आर्टिस्ट वो अपना नसीब लेकर आता है। यू नो, हु वुड हैव थॉट कि मैं आपको 9 साल बाद सनम तेरी कसम के लिए इंटरव्यू दे रही होंगी, यू नो, मूवी दैट्स लाइक लॉन्ग गॉन, कब ऑन एयर, कब वो हुई थी, सिनेमाज में रिलीज हुई थी और फिर नहीं चली। और सो आई फील लाइक मेरा बहुत ही पक्का यकीन है डेस्टिनी में। तो अगर मेरे नसीब का कोई प्रोजेक्ट इंडिया में लिखा है तो वो वहाँ होगा, कहीं लंदन में लिखा है तो वहाँ होगा, अगर सब यहीं लिखा है तो यहीं होगा। लाइक आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द वे माय लाइफ हैज़ पैन्ड आउट, एंड हमेशा सब कुछ बेहतरीन हुआ है। तो कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स हों, आई जस्ट रियली होप दैट आई एम एबल टू डिलिवर अप टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। प्लस नाउ विद द ऑडियंस बिकमिंग सो ग्लोबल, इट्स सो अमेजिंग कि आप कहीं पे भी काम करो, सारी ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर पाती है, व्हिच इज़ वंडरफुल। तो अल्लाह करे अगर मेरे लिए कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी हो, वरना बस अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलें। राइट, इनफैक्ट दुबई में जब आपसे बात हुई थी, तो आपने जी। बड़े मासूमियत से आपने एक बात कही कि दैट फरीदुन इतने बड़े मसले नहीं है, हम और तुम मिलके भी सॉल्व कर सकते हैं। So do you hope that at that stage comes, then because see, Pakistani dramas are very popular in India. Indian films are extremely जी। popular amongst Pakistanis as well. जी, Um, जी, जी, so do you बिल्कुल। think that maybe things improve in such a manner that at least there should be more collaborations maybe? सर एब्सोल्युटली, आई रियली प्रे एंड आई रियली होप कि हमेशा हर तरफ बहुत प्यार हो। अच्छी बात ये है कि ऑडियंस फ़र्क नहीं करती। ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो इंडिया से बनी हो, पाकिस्तान से बनी हो, या किसी ऐसे मुल्क से बनी हो जहाँ से कभी कोई फ़िल्म नहीं आई। ऑडियंस के लिए कंटेंट मैटर करता है, व्हिच इज़ सो वंडरफुल, क्योंकि कंटेंट की भी अपनी एक लाइफ़ होती है। वो जहाँ तक चलता रहे, एंड you know, it's so sweet that we are sitting on a Sanam Teri Kasam interview say, and I'm saying this because आप देखिए कंटेंट ही यहाँ तक लाया है ना इस फिल्म को, 9 साल तक उसको जिंदा रखा है ऑडियंस ने। सो आई थिंक ऑडियंस बिल्कुल फर्क नहीं करती है, और मुझे लगता है आर्टिस्ट भी फर्क नहीं करते हैं। आर्टिस्ट को तो अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, बस कहीं से भी आए, यू नो। तो आई रियली रियली ट्रूली होप कि रास्ते खुले रहने चाहिए हमेशा। लाइक आई वुड रियली होप कि पाकिस्तानी फ़िल्में इंडिया में लगनी चाहिए, इंडियन फ़िल्में यहाँ लगनी चाहिए। हम लोगों की ज़बान सेम है, और जब ज़बान सेम होती है, दिल में प्यार सेम होता है, तो आर्ट की तो जैसे हमेशा से बड़ी क्लीशे बात है, लेकिन आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि हमें बहुत प्यार मिलता है इंडियन ऑडियंस से भी, चाहे हम पाकिस्तान के सीरियल्स कर रहे हों। एंड यू नो, लाइकवाइज़ फॉर द इंडियन आर्टिस्ट, वो चाहे इंडिया में फ़िल्म्स बनाते हैं, पाकिस्तान के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक कोई बाउंड्रीज़ एज़ सच है नहीं, लेकिन जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। All right, okay. ये या वो, either or, if you have to choose one option from the following, तो अगर आप क्या करेंगी? ठीक है। सरूज glasses look या सरूज transformation look? Let's see, मुस्तकीम भाई। सरूज़ ग्लासेस लुक फॉर मी, एंड आई थिंक मेरी जो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन लुक है, जो मैं रेड साड़ी में पहली बार नज़र आती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट लुक है ऑफ मी ऑफ ऑल टाइम्स। वो बोलते हैं लाइक दिस इज़ योर बेस्ट लुक एवर, तो इसलिए उसकी तरफ भी मेरा थोड़ा झुकाव है। लेकिन फॉर मी इट्स द ग्लासेस लुक, क्योंकि वो बड़ी यूनिक लुक थी, कभी देखी नहीं है, कभी वैसा खुद को देखा नहीं है मैंने। All right. Inder's intense silence या Inder's emotional confessions? इमोशनल कन्फेशन, एक्सप्रेसिव होना चाहिए इंसान को हमेशा। All right. Shooting emotional scenes या romantic scenes? रोमांटिक सीन्स प्लीज, क्योंकि इमोशनल सीन्स आर सो ड्रेनिंग, दे आर सो ड्रेनिंग। लाइक आई नो कि उनके लिए मुझे बहुत प्यार मिलता है, बट इफ आई हैव टू पिक वन, इट्स द रोमांटिक सीन्स। तेरा चेहरा या खींच मेरी फोटो, if you had to choose one? खींच मेरी फोटो, विदाउट अ डाउट। Okay. Amir as a co-star या Amir as a best friend? अमीर एज द बेस्ट फ्रेंड फॉर श्योर। Anaya and Hassan's love story या a new drama with Amir? ओह, अनाया एंड हसन्स लव स्टोरी, क्योंकि वहीं सबात पे आई एक्चुअली प्रॉपर्ली मेट हिम। सो मेरे Hmm. लिए सबात और अनाया हसन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत स्पेशल है। A candlelight dinner या long drive with romantic music? कैंडल लाइट डिनर, Love letters या surprise gift? सरप्राइज गिफ्ट। Roses या lilies, flowers that you like more? लिली, Fairy tale romance या love that grows with time?
Love that grows with time, and rather respect that grows with time. Okay. Shahrukh Khan या रणबीर कपूर better actor? Ranveer Kapoor. Alia Bhatt या Kiara Advani better actress according to you? Alia Bhatt. Okay. If you had to ask a question to following people, what would you ask them? Vidya Balan. If you had to ask a question to Vidya Balan, what would you ask? Ask her a question. एक तो वही जो मैंने आपको पहले मेंशन किया कि वो कितना सीमलेसली और ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करती हैं फ्रॉम वन कैरेक्टर टू द अदर. आई वुड लाइक टू नो कि वो कैसे करती हैं ये, सो दैट आई कैन टेक सम ट्रिक्स फ्रॉम हर. एंड आई थिंक आई वुड ऑल्सो वांट टू hear more from her about her watching the movie, like a more detailed feedback. What did she love the most? All right. Shah Rukh Khan. If you had to ask a question to Shah Rukh Khan. Shah Rukh sir, I would want to ask, what is it like to be at the top of the world? And how did he maintain it for so many decades so gracefully? All right. Urva. If you had to ask a question to Urva that you have not asked yet. Oh, I have asked Urva everything. I can ask Urva everything, anything, anytime. Urva and I speak at least 100 times in a day. So, कोई ऐसा सवाल बचा नहीं है. Meryl Streep. If you had to ask a question to Meryl Streep. I mean some acting lessons for sure. I'd want to know कि वो स्क्रीन पे आती हैं तो हम लोग ब्लिंक भी नहीं कर पाते हैं. वो इतना ज़्यादा आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं, तो वो कैसे करती हैं. All right. Himesh Reshammiya, if you had to ask a question to Himesh Reshammiya. कि वो इतना खूबसूरत म्यूजिक कैसे बनाते हैं और इतने सालों से बनाते चले जा रहे हैं. एंड आई होप कि आगे भी कई साल तक बनाते रहें. तो उनसे पूछूंगी कैसे करते हैं वो ये मैजिक. All right. हर्षवर्धन राणे से अगर आप एक सवाल पूछना चाहें. हर्ष से आई विल आस्क कि क्योंकि मैं खुद हूँ नहीं इंडिया में, तो आई वुड वांट टू नो कि कैसा फील हो रहा है. ये जो सब इतना खूबसूरत रिएक्शन है, ये इन पर्सन कैसा फील हो रहा है. In person, कैसा feel हो रहा है? All right, fantastic. Mabra, I understand that you have a very busy schedule. Thank you very much for your time. Congratulations on your marriage, first of all, and congratulations Thank on you. this amazing response. It is really surreal. मैंने अपने career में इस तरीके का पहली बार देख रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि फिल्म हो रही है जिस तरीके का ये response सामने आ रहा है. The new films are coming जी. up, but the trending part for Sanam Teri Kasam is definitely more. I can feel it. I'm seeing it in practical terms. I'm How seeing it wonderful. whatsoever, which is insane. And I'm talking about some really big How films. wonderful. So congratulations and Thank all you, the best wishes. Faridoon sir, for giving me an insight into what's happening. आपके इसरार पे मैंने ये वक्त निकाला, मुझे भी बहुत मजा आया कि मुझे सब पता चला है कि हो क्या रहा है. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, like with everything that's happening, things are so fast. मुझे वक्त नहीं मिल रहा था to sit down and absorb it. So I think this interview was a good opportunity for that as well. And through your medium, I just want to thank everybody. मतलब प्यार जो है ना, वो इतनी कीमती, इतनी नायाब, इतनी प्राइसलेस चीज़ है ना, जो लोग दे रहे हैं मुझे और हमारी पूरी फ़िल्म को. ये बहुत, मतलब ये इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता कोई मेरे लिए. ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. थैंक यू सो मच सबका, जो लोग प्यार दे रहे हैं, जो लोग प्रेज़ कर रहे हैं. किसी की मैं शायद चीज़ें मिस कर दूँ, लेकिन मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ थ्रू योर मीडियम.